मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করতে চলেছি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে। সম্প্রতি কপিল শর্মা শোতে জন আব্রাহামের সঙ্গে পশুপ্রেম ও প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে এই সময় বর্তমানে ভাইরাল হচ্ছে। তবে এই বিষয়টি সামনে আসতেই মুসলিম সমাজের অনেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলছেন, যখনই মুসলিমদের কোরবানির সময় আসে ঠিক তখনই হঠাৎ করে পশুপ্রেম নিয়ে এত আলোচনা শুরু হয় কেন? অথচ সারা বছর জুড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এমনকি পুরো ভারতবর্ষ জুড়েও প্রতিদিন হাজার হাজার ছাগল, গরু, ভেড়া, মুরগি এবং বিভিন্ন পশু খাদ্যের জন্য জবাহ করা হয়ে থাকে। তখন কিন্তু খুব কম মানুষই এমন বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। আরও একটি বিষয় বর্তমানে বিজ্ঞানও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যে বিজ্ঞানীরা বলছেন গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা কিংবা শাক সবজির মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আমরা যখন সেগুলো খাই তখন সেটাও কি প্রাণ ধ্বংস করা বলা হবে না? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তখন এসব নিয়ে খুব একটা আলোচনা দেখা যায় না। বন্ধুরা, ঠিক এমনই একটি প্রশ্ন একসময় করা হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক বক্তা ডক্টর জাকির নায়েককে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলিমরা কুরবানির সময় পশু জবে করে, এটা কি সত্যি ঠিক? পশুপ্রেম বলতে আসলে কি বোঝায় আর ইসলাম এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখে? আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো ডক্টর জাকির নায়েকের মুখ থেকে সরাসরি শুনবো এই বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি অত্যন্ত যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আর এই ভিডিওটি যদি আপনাকে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এখনই একটি লাইক করে দিবেন। আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে ভবিষ্যতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও সবার আগে আপনি পেয়ে যান। এছাড়াও বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে গরু ও কুরবানি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলছে, সেই পরিস্থিতিতে এই ভিডিওটিকে আপনি বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করুন, যাতে করে মানুষ সঠিক তথ্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারে। তো বন্ধুরা, আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন আজকের এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শুরু করা যাক। আমরা ডক্টর জাকির নায়েকের সেই কথাগুলো স্পষ্টভাবে শুনে নেব। जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है। मेरा नाम अंकुर फडणिस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉनवेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉनवेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नह सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़, बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते,
हमारे फूड में होना जरूरी है, हमारे खाने में होना जरूरी है। इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। सही? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला हूँ, कई बार बोला है। और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीली दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेगा कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी, कार्निवोरस है। वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर, पांडव के बड़े भाई, वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में, पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे, हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एटसेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है। तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है? वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते।
आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को, पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गए, आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट की सेक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज है। चाहे पेड़ पौधा, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं, मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था, आज साइंस एडवांस हो चुका, और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। বন্ধুরা, ডক্টর জাকির নায়েকের এই বক্তব্যর মূল সারমর্ম ছিল ইসলামে মাংস খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু আল্লাহ মানুষকে কিছু প্রাণী খাদ্য হিসাবে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাই শুধুমাত্র মাংস খাওয়াকে নিষ্ঠুরতা বা পাপ বলা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন, ইসলাম কখনোই অকারণে কোনো প্রাণী হত্যা করতে বলে না, শুধু খাওয়ার প্রয়োজন হলেই এবং আল্লাহর নামে জবাই করা হলেই তা বৈধ। তিনি আরও বলেন, মানুষ সর্বভুক, অর্থাৎ মানুষ শাকসবজি এবং মাংস দুটোই খেতে পারে, কারণ মানুষের শরীর ও দাঁতের গঠন এমনিভাবেই তৈরি। তিনি বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে মানুষের শরীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য প্রাণীজ খাদ্য থেকেও উপকার পায়। একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেন, কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে মাংস না খায় সেটাও তার নিজের সিদ্ধান্ত, কিন্তু কাউকে জোর করে মাংস খাওয়া হারাম বা ভুল বলা উচিত নয়, কারণ ইসলাম অনুযায়ী আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন সেটা হারাম বলা ঠিক নয়।
ডক্টর জাকির নায়েক আরও ব্যাখ্যা করেন যে শুধু প্রাণীর মধ্যেই নয়, গাছপালার মধ্যেও জীবন আছে, তাই কোনো জীবনকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এই যুক্তি পুরোপুরি মানতে গেলে মানুষ কিছুই খেতে পারবে না। ইসলামের শিক্ষা হলো অপ্রয়োজনীয় হত্যা নয়, বরং প্রয়োজন অনুযায়ী ও নিয়ম মেনে খাদ্য গ্রহণ করা। সর্বশেষ তিনি বলেন, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ ও যৌক্তিক ধর্ম। বিনা কারণে শিকার বা পশু হত্যা হারাম, কিন্তু মানুষের খাদ্যের জন্য আল্লাহ যেসব প্রাণী হালাল করেছেন সেগুলো বৈধ। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওর ইনফরমেশন। যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে আপনি অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করুন। আর এই রকম নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।